Hello everyone, I am Lavanya and I welcome you to today's lecture on light, reflection and refraction. And this is again a very requested one-shot video just meant for your last day revision. So let's quickly begin without much ado. Before starting any good thing, you should fill your mind with positivity, and that is your positive action combined with positive thinking results in success. Let's quickly fly with the jet speed and start the lecture. So, before that, I'm going to close my camera so as to avoid distractions. Yes. So, I hope I'm audible. Let's get going. So, what will be discussed today? Just a second, let me enlarge it. And today we will discuss introduction, properties of light, reflection, under which comes laws of reflection and virtual and real images, characteristics of images formed by plane mirror, lateral inversion and its applications. It's a quite lengthy chapter, so I'll try cover it in lesser time as possible. So next we will discuss the uses of concave mirror, ray diagrams, extremely important, objects placed at different positions, then the use of convex mirrors, sign convention, mirror formula, magnification and much more. So let's quickly begin. हम आ गए हैं स्लाइड नंबर 1 पे, तो अब बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं. Light is a form of energy that provides sensation of vision. Light क्या है? Is a form of energy which provides sensation of vision. Light is a form of energy जो कि जब ऑब्जेक्ट से किसी टकरा के हमारी आईज पे वापस आती है, then it produces the sensation of vision. Some common phenomena associated with lights are image formation by mirrors, the twinkling of stars, beautiful colors of a rainbow, bending of light by medium and so on. क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि विजन की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, और ये सारे फिनोमेना जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स मूव अहेड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट क्या है? इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. ये वैक्यूम में भी बहुत इजीली ट्रैवल कर सकती है. एग्जाम्पल बीइंग, जब सन से सनलाइट हमारी अर्थ पे आती है तो क्या उसको कोई मीडियम मिलता है? कोई मीडियम नहीं होता. स्पेस इज मीडियमलेस. इट इज अ कंप्लीट वैक्यूम. लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हैज़ डुअल नेचर. कभी वेव की तरह बिहेव करेगी, कभी पार्टिकल की तरह. लाइट के पाथ को जब ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, जब कोई भी रुकावट उसकी पाथ में आएगी, तो क्या बनेगी? एक शैडो. ठीक है, क्लियर. लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम क्या स्पीड है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. When light falls on the surface, following में happen. क्या क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या एब्जॉर्प्शन. ठीक है, अभी ये क्या है अभी बताते हैं. देखो, दिस इज द इंसिडेंट रे जो सरफेस पे पड़ रही है, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे जो कि सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है. और ये कौन है? ये रिफ्रैक्टेड रे है. पॉइंट नंबर 1, या तो रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन कब होगा? जब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम. क्या ये दिख रहा है? यहाँ से लाइट यहाँ चली गई. ये मिरर था, ये कोई सरफेस था जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई. अगर सेम मीडियम में पहुँची है लाइट, सेम मीडियम में है, क्या सेम है? मीडियम सेम है, तब रिफ्लेक्शन होगा. वेन एवर द लाइट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम वी कॉल इट रिफ्लेक्शन. वेन एवर लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, यहाँ पे मीडियम बदल गया, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, ये दिख रहा है, कुछ एंगल से थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और ये मीडियम भी इसने चेंज कर लिया, तब ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन. Whenever the medium changes, it is refraction, and when it reflects back, bounces back in the same medium, it is reflection. Absorption क्या हुआ?
जब लाइट फॉल हुई तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट इस सरफेस ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, दैट इज एब्जॉर्प्शन. आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? Whenever the light bounces back in the same medium, we call it reflection. Whenever light travels in another medium, it is refraction. Whenever the surface absorbs some amount of light, it is absorption. Next, what is reflection? Bouncing back of light when it strikes on a polished surface like a mirror in the same medium. This is very important point. भूलना नहीं है इसको. इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट. वेन एवर लाइट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, इट इज़ रिफ्लेक्शन. और जब मीडियम बदल गया तो रिफ्रैक्शन होगा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये तो सबको आती होगी, बट स्टिल जस्ट टू रीइटरेट, जस्ट टू रिवाइज, एक बार देख लेते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ठीक है. Incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. एक बार इसको diagrammatically देख लेते हैं. See, this is your incident ray, this is your reflected ray and this is a mirror. इस point पे incident हुई, incident point of incidence, reflected ray and this is normal which is always perpendicular to the surface. 90 degree होता है इसका angle. Angle of incidence, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे. एक और इम्पॉर्टेंट बात, रिफ्लेक्शन में ही एंगल आई एंड एंगल आर आर इक्वल. इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आई एंड एंगल आर आर नॉट इक्वल. फिर से रिकॉल कर रही हूँ मैं, रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, जबकि रिफ्रैक्शन में जब लाइट रे अपना मीडियम बदलेगी तो ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट, रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज. डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस में बी आस्क्ड. ठीक है. इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट. कम से कम 2 लाइट रेज या तो सच में मीट करें या तो अपीयर टू मीट हो. इसका क्या मतलब है? वील गेट टू नो इट सून. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. इमेज क्या है? वॉट इज एन इमेज? या तो लाइट रेज एक्चुअली मीट करें या तो अपीयर टू मीट हो. दैट विल बी कॉल्ड अ इमेज. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज पे अ लॉट ऑफ अटेंशन हियर. आई होप द फॉन्ट एंड द साइज इज एब्सोल्युटली क्लियर. एवरीवन, रियल इमेज क्या है? व्हेन द रेज एक्चुअली मीट इट इज रियल इमेज. नाम से क्लियर हो रहा है. When the rays appear to meet, जब सच में मीट नहीं हो रही. What is virtual? Virtual means imaginary. सच में मीट नहीं हो रही पर लग रहा है ऐसा कि मिल रही हैं. That is your virtual image. Real image can be obtained on a screen, whereas virtual image को screen पे obtain नहीं कर सकते. Real image is always inverted. Virtual images are erect. ठीक है, बात समझ में आ रही है. अभी रे डायग्राम्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ इन्वर्टेड इमेज बन रही है और कहाँ कहाँ इरेक्ट इमेज बन रही है. जहाँ भी इन्वर्टेड होगी इट विल बी अ रियल इमेज. वेन एवर देयर इज इरेक्ट इमेजेस वी कॉल देम वर्चुअल इमेजेस. What are the examples? Image formed on a cinema screen and formed by concave mirrors are the examples of real image. Cinema screen पे whenever it is obtained on a screen it is a real image. जहाँ screen पे नहीं बनेगी, जैसे plane mirror में और convex mirror में, it will be a virtual image. जहाँ भी screen पे obtain हो रही है, जहाँ भी inverted image बन रही है, that is your real image. Whenever the image cannot be obtained on a screen और ये erect बन रही है, that is your virtual image. Is that clear? Should I move ahead, children? Okay. So characteristics of image formed by plane mirrors. अभी एग्जाम्पल्स में भी हमने देखा था कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. द मिरर्स विच वी यूज डेली इन आवर होम्स, कॉमन मिरर्स used for example dressing and all stuffs like that, we use plane mirrors. In the plane mirrors the images
वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी हमने पढ़ा था एग्जाम्पल्स में, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, कॉमन सेंस की बात है, जब भी हम अपने आप को घर पे मिरर में देखते हैं, क्या हमारी इमेज छोटी दिखती है या बड़ी दिखती है? इट इज़ ऑन द ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे ही साइज की इमेज रहती है। जितना दूर हम मिरर से जाएंगे, इमेज भी उतना ही दूर मिरर से जाएगी। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द image and the mirror. Extremely important point, burning points here only. जितना दूर हम मिरर से जाएंगे, इमेज भी मिरर से उतना ही दूर होती जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। प्लीज़ इसको याद रखें। एंड द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम अपना राइट हैंड रेज करते हैं मिरर के सामने, हमारा इमेज कौन सी हैंड रेज करता है? लेफ्ट हैंड। सो दैट इज लेटरल इन्वर्जन। एम्बुलेंस जब भी लिखा हुआ रहता है तो दैट इज इन्वर्टेड। ध्यान देंगे तो हम इन्वर्टेड दिखाई देगा, ताकि बाहर से पढ़ने में सीधा दिखे। इज दैट क्लियर? दिस इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन जो हम लोग रोज डेली ऑब्जर्व करते हैं। डेली हम अपने आप को मिरर में चेक करते हैं। वी ड्रेस अप आवरसेल्व्स इन द मिरर, वी सी द एम्बुलेंसेज ऑन द रोड्स. So this is what is lateral inversion. The right side of the object appears to be the left side of the image and vice versa. जब भी हम अपना लेफ्ट हैंड रेस करते हैं मिरर के सामने, हमारी इमेज राइट हैंड रेस करती है. So that is what is lateral inversion. Should we move ahead? Easy थे टॉपिक्स तो. Application of lateral inversion. देखो very important. The same example which I gave, the word ambulance is written in reverse direction so that it can be read correctly in the rear view mirror. सामने से जो भी देख रहा है उसको साफ साफ clear और correctly दिखे going in the front of it. So I think it's clear. We already discussed it. See children, since we have very less amount of time, so I have to cover all the topics very quickly. We will discuss just the topics that are important for your exams. Spherical mirrors, extremely important. Red stars marked. Mirrors whose reflecting surface is curved. Mirrors like this are spherical mirrors. Diagram is not that good, but अभी आपको diagrams दिखेंगे. So it's just a representation. The two types of spherical mirrors are convex and concave mirror. Basics हैं ये chapter के. Properties of concave mirror. Just a second. I think now it's clear. Reflecting surface is curved inwards. Curved कहाँ पे है? Inwards. Whereas in convex mirror it is curved outwards. Is that clear? Are the differences clear to you? And it is a converging mirror. ये लाइट रेज जो पड़ रही हैं उसके ऊपर उनको और क्लोज ले आता है. इट्स अ कन्वर्जिंग, कन्वर्ज कराता है, एक जगह पे मीट कराता है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स. कॉन्केव में इनवर्ड्स कर्विंग था, कॉन्वेक्स में आउटवर्ड कर्विंग. इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर. ये लाइट रेज को दूर दूर ले जाता है, डाइवर्ज कराता है, फैलाता है. Clear everyone? Now I'm moving ahead. Terms related to spherical mirror. Important terms which can be asked in MCQ like questions. So term number 1 is principal axis. The line joining the pole to the center of curvature. अभी हम सारा diagrammatically भी एक बार देख लेंगे so that एकदम से clear हो जाए. एकदम distilled water clear होना चाहिए. पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ठीक है, आई थिंक आप सब इमेजिन कर पा रहे होंगे व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट. इफ यू कांट इमेजिन, आई विल शो यू द डायग्राम्स. एपर्चर, इट इज एन इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. थिन एपर्चर वाले ही मिरर्स हमारे कोर्स में इस बार थिन एपर्चर. नेक्स्ट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो सेंटर है होलो ग्लास स्फीयर का, जो जिसका पीस हमने निकाला है, दैट इज योर
सेंटर ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, फोकस. ये वाली डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. It is a point on the principal axis where all the parallel light rays actually meet or appear to meet after reflection. अभी मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ. Focal length is the distance between the pole and the focus. ठीक. नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ and radius of curvature. F is equals to R by 2. एकदम इसको दिल में बसा लेना है because it will help you in the numericals. ये आ गया हमारा स्पेशल डायग्राम. ये हमें दिख रही है फोकस. फोकस कहाँ है? ये हो गया हमारा पोल. ये हो गया फोकस. ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टिव सरफेस, हार्ड सरफेस एंड लाइट कम्स फ्रॉम दिस साइड. ऐसे आएगी लाइट. जो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं वो कहाँ से पास करेंगी? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेंगी. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर. पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस. पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ. ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. और ये हमारे हॉलो स्फीयर का एक छोटा सा पीस है, थिन एपर्चर वाला कॉनकेव मिरर. क्लियर? अब समझ में आया डायग्राम से? डायग्राम में देखो सब मार्क्ड है. एक बार देख लो और इफ़ यू नीड इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो. ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सो दैट वी मूव अहेड. रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के. स्फेरिकल मिरर्स में इमेज कैसे फॉर्म होगी? सो इसके लिए मैं इसको थोड़ा साइड में ले जाती हूँ और इस वाले को एनलार्ज कर देती हूँ. ठीक. A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus. Principal focus का है या focus का है? It's the same thing. In the case of a concave mirror or appear to diverge from the principal focus. जब हम convex mirror की बात करेंगे तब समझेंगे. जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी? तो फोकस से पास करेगी. फॉर इसके लिए एक डायग्राम है, देख लो ये डायग्राम प्लीज़, इसे बहुत अच्छे से देख लो. पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट रे. ठीक है, जा रही है, दिख रही है सबको क्लियर. कहाँ से पास कर रही है? फोकस से. अगर नहीं दिख रही है तो ये देखो, ये फोकस है. ठीक है, ये फोकस है. ठीक है, जो रे, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी. देखो यहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर है लेकिन ये पैरेलल जा रही है लाइट रे. रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे चली गई. ठीक, अब ये फोकस से सच में तो पास नहीं कर सकती बट इट विल अपीयर टू पास. देखो यहाँ से एक्सटेंड कर दिया तो फोकस से पास करती हुई दिखेगी. क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? सेकेंड रूल क्या है? उसी का वाइस वर्सा, कि अगर प्रिंसिपल फोकस से लाइट रे पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. 2 पॉइंट हमें समझने हैं. या तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ट्रैवल कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी. अगर फोकस से पास करती हुई जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. दोनों पॉइंट एक दूसरे का रिवर्स हैं.
अगर फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। नेक्स्ट रूल क्या है? रूल नंबर 3, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करती हुई, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ डायग्राम के थ्रू। देखो, कोई भी रे अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद अपना पाथ रिट्रेस करेगी। जहाँ से आई है उसी पाथ पे वहीं को लौट जाएगी। जैसे आई है वैसे, जिसको कहते हैं उल्टे पैर, भाग जाएगी, उल्टे पैर चली जाएगी। कर्वेचर से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी कर्वेचर से पास करती हुई चली जाएगी। ये देखो, कॉन्वेक्स में कर्वेचर से पास तो अब करेगी नहीं, लेकिन हम एक्सटेंड करेंगे तो दिखेगी हमें, फिर वापस वहीं से चली जाएगी। जहाँ से आई है उल्टे पैर सेम पाथ से वहीं से चली जाएगी। फाइनली हम इमेज फॉर्मेशन पे पहुंच गए। एकदम हॉट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक फॉर एग्जाम्स, एकदम बर्निंग टॉपिक फॉर एग्जाम्स। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। When ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब बहुत दूर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा। इन्फिनिटी क्या होती है? इन्फिनिटी का सिंबल ऐसे है, जिसको नहीं पता है मैं बता दूं। इन्फिनिटी मतलब एक्सट्रीमली फार अवे, बहुत दूर से रेज आ रही हैं, बहुत दूर पड़ी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी से रेज आती हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है। मान लो ऑब्जेक्ट, ये देखो सीधे डायग्राम देखो, कितना दूर पड़ा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। वहाँ से कैसी रेज आएंगी? पैरेलल रेज आएंगी। ये आ गई पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज अगर आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं, तो रूल नंबर 1 क्या था? फोकस से पास करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से? फोकस से पास करेंगी। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। एकदम पॉइंट इमेज बनेगी, पॉइंट साइज्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड। एक बार देख लो, कैन यू सी पॉइंट साइज इमेज? पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट के साइज की इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, फोकस पे इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो पैरेलल रेज आएंगी। पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी, एकदम पॉइंट साइज की। ये देखो केस नंबर 2, जब इमेज बियॉन्ड सी, सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है, सबको दिख रहा है, ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड। वहां से रेज कैसी आ रही हैं? ये आ रही हैं रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो, ये आई रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं। एक सेकेंड, ये वाली दिखाती हूँ। ये वाली रे दिख रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑरेंज रे। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ठीक है ना, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ये देखो, ये वाली रे कहाँ से पास कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी उल्टे पैर उसी रास्ते लौट जाएगी। दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई इमेज अपना पाथ रिट्रेस करेगी, जहाँ से आई है उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। इमेज कहाँ बन रही है? सी दिस, कैन यू सी द इमेज? ब्लू कलर्ड इमेज, ये दिख रही है। छोटी सी इमेज थी, मैंने थोड़ा डार्क कर दिया इसको। नाउ कैन यू सी इट? A dash B dash is the image. A dash B dash is the image. Inverted image दिख रही है, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज। और फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? किस पोजीशन पे? बिटवीन F एंड C, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। साइज कैसी? ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी बड़ी है? ये। और इमेज छोटी सी बन रही है, दैट मीन्स डिमिनिश्ड। छोटी है लेकिन पॉइंट साइज नहीं है, इतनी भी छोटी नहीं है। इट इज़ स्मॉल, इट इज़ डिमिनिश्ड बट नॉट पॉइंट साइज्ड। हाईली डिमिनिश्ड नहीं लिखेंगे, डिमिनिश्ड लिखेंगे। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। नेक्स्ट केस,
केस नंबर 3, जब सेंटर पे रखा गया है, क्या हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम धीरे धीरे मिरर के पास ला रहे हैं? इतना ऑब्जर्व सबको हो रहा है ना कि सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, पैरेलल रेज आ रही थी, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रखा गया, फिर अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो फर्स्ट रे आई, पैरेलल थी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। सेकेंड रे फोकस से पास करती हुई पैरेलल हो जाएगी, जो रे फोकस से पास कर रही है वो पैरेलल हो जाएगी, जो रे पैरेलल है वो फोकस से पास करेगी। ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश। इन्वर्टेड इमेज, सेम साइज की इमेज दिख रही है ना सबको, सेम साइज की इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट जितने साइज का उतनी ही इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इजी पीजी एवरीवन। बढ़े आगे, केस नंबर 4, इमेज ऑब्जेक्ट को और पास लेके आ गए। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच इमेज रखी है, दिख रही है, ऑब्जेक्ट रखा है, ये दिख रहा है सबको, छोटा सा ऑब्जेक्ट, डार्क ब्लू कलर से हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर से हमने रे डायग्राम बनाया। फर्स्ट रे हमने कहाँ से पास कराई? पैरेलल पास कराई प्रिंसिपल रे के, फोकस से पास करेगी, सबको दिख रहा है, इट्स वेरी क्लियर टू यू नाउ। फिर हमने सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई, पाथ रिट्रेस किया और दोनों रेज मीट कर गई। साइज ऑफ द इमेज विल बी एनलार्ज। ये दिख रही है, छोटी सी ऑब्जेक्ट थी और इमेज कितनी बड़ी बनी है, इमेज बड़ी है ना ऑब्जेक्ट से, सो इट इज एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, यू कैन सी दैट। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, ठीक है, क्लियर। लेट्स मूव अहेड। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस कर दिया गया है, नाउ इमेज और क्लोज रख दिया गया ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? इन्फिनिटी पे। कैन यू सी दिस? फोकस पे इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज फॉर्मेशन क्या दिख रही है यहाँ पे? दूर जाके कहीं होगी, इन्फिनिटी पे होगी, दूर जाके कहीं इमेज की फॉर्मेशन होगी। जब भी इन्फिनिटी पे इतनी दूर जाके होगी तो हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, बहुत बड़ी सी इमेज बनेगी। इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, बहुत बड़ी सी इमेज बनेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? इन्फिनिटी पे बन रही है इमेज, प्लीज़ इस केस को ध्यान रखते हैं, ये केस इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे, रे डायग्राम से क्वेश्चन आना कंफर्म है, प्लीज़ इसे स्किप मत करना। देखो ऑब्जेक्ट को और पास रख दिया है। केस नंबर 6, पोल और फोकस के बीच में और हम पास कर दिए, कैसी इमेज बन रही? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज ओनली वन केस, ये पहला कॉनकेव मिरर का केस है जहाँ पे इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। सिर्फ केस नंबर 6 में जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में रखा जाएगा तभी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, सबको दिख रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। इज दैट क्लियर एवरीवन? रे डायग्राम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, द रूल्स आर क्लियर एंड आई हैव ऑल्सो reiterated many times. Now we come to uses of concave mirror. यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बार बार मार्क कर रही हूँ, रे डायग्राम से, रूल्स से, इमेज फॉर्मेशन से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ पहले, जस्ट अ सेकेंड। नाउ use number 1, torches, searchlights, vehicle headlights to get powerful parallel beam of light. headlight में क्यों हम concave mirror लगा रहे हैं? concave mirrors are converging mirrors, ठीक है, इसीलिए हम headlights में लगाते हैं। headlight में क्या चाहिए? converge करा रेज को। torches, searchlights, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट क्योंकि वो बड़ी इमेज दिखाता है, सिंस द इमेज इज एनलार्ज्ड। डेंटिस्ट को कैसी इमेज चाहिए? टीथ की, माउथ पार्ट्स की एनलार्ज इमेज चाहिए, लार्ज, ठीक है। टीथ हैव टू बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस।
ऑब्जेक्ट को जो हमें देखना है वो पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा। समझ में आ रहा है? डेंटिस्ट नीड टू सी द एनलार्ज इमेज ऑफ योर टीथ, दैट्स वाई दे यूज कॉनकेव मिरर्स। नेक्स्ट, concave mirror is used as shaving mirrors, makeup mirrors. Large concave mirrors are used in concentrating sunlight to produce heat in solar furnace. Very important. Converging है ना, ये मिरर कन्वर्जिंग है तो सन रेज को लाइट रेज को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा. दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस. शेविंग मिरर क्यों है? क्योंकि एनलार्ज इमेज देता है फेस की. क्लियर? चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं. Now we come to image formation by convex mirrors. इसमें कितने केसेस हैं? बस 2 ही केसेस हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं. So when the image is placed at infinity, जब भी infinity पे इमेज प्लेस करेगी, कैसी रेज आएंगी? The rays will be parallel. Parallel rays आएंगी तो from where will it pass? From the फोकस. तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी? सिंपली फोकस पे. ये देखो, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर. ये इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं. ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो हमें दिखेगा कि फोकस से पास हो रही है. क्लियर? फोकस से पास करेगी सारी रेस, देयरफॉर फोकस पे ही इमेज बनेगी. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, पॉइंट साइज इमेज. पॉइंट साइज इमेज बेसिकली क्या है? बट सिंस हमें दिख रहा है कि वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज बनेगी. ठीक है, अभी इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है ये तो हम पॉइंट साइज में नहीं बता सकते, बट फिर भी सिंस वर्चुअल बन रही है इसलिए वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट. सो देयरफॉर वी कैन राइट इरेक्ट इमेज. Next case is your when object is placed between pole and infinity. पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया तो इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ होगी? पोल और फोकस के बीच में. ये रहा पोल, ये रहा फोकस, इनके बीच में ही कहीं इमेज बनेगी. छोटी सी इमेज हमें दिखाई दे रही है. राइट? नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल और इरेक्ट एंड इट विल बी डिमिनिश्ड. ओके, ये इमेज फॉर्मेशन के रूल्स सबको पता है. एवरीबडी कैन ड्रॉ डायग्राम्स एंड आइडेंटिफाई देम इजीली. सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की लाइन रिट्रेसेस इट्स पाथ, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल रे के, ये फोकस से पास करेगी. जस्ट अ सेकेंड. सी, इट पासेस फ्रॉम द फोकस. क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर और बहुत बार प्रैक्टिस हो भी चुकी होगी अभी तक. So let's move ahead. A full length image. ये देखो important point था, मैंने क्यों इसे अलग से लिखा? Just understand this. Full length of an image of a tall building or tree can be seen in a small convex mirror. Rear view mirrors जो होते हैं that are convex. बड़ी सी ऑब्जेक्ट हमें छोटे से मिरर में दिख सकती है. आगे पीछे कोई बड़ी बिल्डिंग है या ट्री है, इट कैन बी इजिली सीन इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर. देयरफॉर दे आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स. सी, अभी यूजेस आ जाएंगे कन्वेक्स मिरर के, तब हमें समझ में आएगा. जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा इनलार्ज करेंगे तभी दिखेगा. सी, पॉइंट नंबर 1 में दिया है रियर व्यू मिरर्स. जो व्हीकल में मिरर्स लगे होते हैं, रियर व्यू मिरर्स, दे आर कन्वेक्स. क्यों? अभी हमने पढ़ा था क्योंकि बड़ी से किसी ऑब्जेक्ट, बड़ी सी कोई व्हीकल पीछे से आ रही है, सो आराम से हमें उस छोटे से मिरर में दिख सकता है. दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज. छोटी सी इमेज हमें दिखेगी और हमेशा इरेक्ट दिखेगी. दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स. प्लीज़ इन 2 पॉइंट्स को दिल में बसा लो. जस्ट बाई हार्ट देम, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट,
Convex mirrors are used at blind turns and on points of merging traffic to facilitate vision of both side traffic. अभी हमने पढ़ा था कि wider field of view होता है. इस फ्रेज को याद रखना है, wider field of view. इसीलिए दोनों साइड की ट्रैफिक को मैनेज करने में हेल्प होती है. Shops in as security mirrors, क्योंकि छोटी छोटी इमेजेस और इरेक्ट इमेजेस दिखती हैं, इसीलिए इनको सिक्योरिटी मिरर्स की तरह यूज़ भी किया जाता है. नाउ कम्स टू साइन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. मिरर अगर ऐसे बनाए मेरा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस होता है. अभी हमने देखा है बहुत सारे रे डायग्राम्स, तो इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक. ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने डिस्टेंसेस होंगे, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रही है तो पॉजिटिव होगा. साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव. ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव. नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ टेकन एज नेगेटिव. जहाँ भी इंसिडेंट रे जाएगी उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे. परपेंडिकुलर टू द एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव. इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो उसकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगी. वहीं अगर नीचे बन रही है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगी. एज सिंपल एज दैट. डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर और बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव. प्लीज़ इसको भी बाई हार्ट कर लीजिए. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव. क्यों नेगेटिव है? बिकॉज u इज ऑलवेज प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव. इसको बाई हार्ट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ. There can be a question. Next, mirror formula. 100% guarantee questions will come. 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. v पता है सबको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी v is a image distance, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and f is a focal length of the image. ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से प्रैक्टिस करना आ सकता है. मैग्नीफिकेशन. व्हाट इज मैग्नीफिकेशन? व्हाट इज मैग्नीफिकेशन? इट इज़ अ रेशियो, और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है. देयरफॉर मैग्नीफिकेशन इज यूनिट लेस. कोई यूनिट नहीं लगानी है इसमें. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है दिस वन. एंड m इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू. तो हम ये भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, क्योंकि दोनों मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला हैं, इसीलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे. नेक्स्ट, इफ m इज नेगेटिव इमेज इज रियल. अगर m, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और m ऐसी बन रही है नेगेटिव, यानी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने वाली इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है. दिख रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर. और अगर ऊपर बन रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है. इफ एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ, अगर एच आई एच ओ के बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर है, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1. मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा हुई तो इमेज एनलार्ज होगी, ऑब्वियस सी बात है, और कम हुई तो इमेज डिमिनिश्ड होगी. इमेज बड़ी कब बनेगी? जब हाइट, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा हो, और इफ़ ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा होती है तो क्या होगी? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1 क्यों है? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो रही है. क्या प्लेन मिरर में, अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि प्लेन मिरर में जो इमेज की साइज़ होती है वही ऑब्जेक्ट की साइज़ होती है. इसका मतलब इसकी मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 होती है.
Positive sign indicates virtual image. 1 indicates that image of the is equal to the object size. Image और object की size equal है, जो कि plane mirror की property है. If m is positive and less than 1, it is a convex mirror. Extremely important point. अगर ये positive आ रहा है magnification and less than 1, अगर 1 से कम है और positive है, या फिर बोल रही हूँ 1 से कम है और positive है, तो ये कौन सा mirror है? Convex mirror है. If m is positive and more than 1, m positive less than 1, इसको लर्न कर लो. ये कंडीशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट. फिर से बोल रही हूँ, बाई हार्ट कर लो. ठीक है. If m is positive less than 1, it is a convex mirror. m is positive more than 1, it is a concave mirror. और m नेगेटिव बन रहा है तो भी कॉनकेव मिरर. ठीक है, आई बात समझ में? बढ़े आगे. दिस इज द सेम थिंग. अब देखो साइन कन्वेंशन एक बार डायग्राम से समझ लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. ये देखो, हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है. पॉजिटिव हाइट अपवर्ड्स, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव. हाइट डाउनवर्ड्स, मैग्निफिकेशन नेगेटिव. ये देखो, ये मिरर पॉलिश सरफेस. डिस्टेंस टुवर्ड द राइट पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे कैसे आती है? हमेशा राइट साइड की तरफ जाती है. इंसिडेंट रे ऐसे आती है, इंसिडेंट लाइट. तो ये वाला डिस्टेंस कौन सा होगा? राइट साइड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव. ऑब्जेक्ट कैसे हमेशा प्लेस किया जाता है? हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं. ये वाला चार्ट जो इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, नेचर ऑफ इमेज मार्क की हुई है. प्लीज़ इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये पोजीशन है, सारे रे डायग्राम्स हैं शॉर्ट में. ठीक है, इसको प्लीज़ बाय हार्ट कर लेना एकदम अच्छे से. पोल और फोकस के बीच में तो कैसी इमेज बन रही है? फोकस पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इन्फिनिटी पे है. कैसी कैसी इमेजेस बन रही हैं? ऑल द केसेस आर गिवन. नाउ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लेटरल इन्वर्जन. देखो ये वाला डॉट यहाँ पे पॉइंट मार्क है डी पे, तो ये वाला ग्रीन वाला और ग्रीन वाला करस्पॉन्डिंग देख लो. उल्टा दिख रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज. ये ग्रीन वाला यहाँ दिख रहा है, रेड वाला ये वाला यहाँ दिख रहा है, पर्पल वाला यहाँ दिख रहा है, ये वाला. डन. ये हो गई लेटरल इन्वर्जन. ये हो गया एम्बुलेंस वाला एग्जाम्पल, ये जो इन्वर्टेड ऑर्डर में लिखी रहती है ताकि सामने वाले को सीधा समझ में आए. नाउ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. बहुत बार ये हम यूसेस भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे. सो दिस इज कॉनकेव मिरर, shaving mirrors, makeup mirrors, dentist mirrors, and in torches. And this is yes, this is convex mirrors, rear view mirrors, and telescopes. So hey everyone, if you found out this video to be interesting, informative and useful for your revision, do like, share and subscribe my channel. Till then, bye bye, take care, keep hustling and all the very best for your exams.